Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our 12th lecture, which is on annuity. In previous lectures, we have discussed about how to calculate the present and future value of a single amount and how to calculate the present and future value of a mixed cash flow. In today's lecture, we are going to discuss about annuity and how we can calculate the present and future value of annuities and what are the benefit of annuities. First, let's see what is annuity. It it must be a very new word for all of you. So let's see what is an annuity. Annuity is a payment or a receipt of an equal cash flow per period for a specified number of periods, or we can say a series of equal payments that are either paid to you or paid by you. Annuities can be a the point of focus here is, which is also in a bold point, is an equal cash flow, or we can say a series of equal payment for a specified number of periods. यानी कि आपके पास क्या है, कोई भी कैश फ्लो है बट कैश फ्लो अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स. आइदर आपने वो जो कैश फ्लो है या वो पेमेंट आपने पे करनी है या आपने रिसीव करनी है, लेकिन जो पेमेंट की अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए और फॉर सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड होनी चाहिए. नॉट यानी कि वन टाइम पेमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डिफरेंट इंटरवल के ऊपर हमें मिलती रहनी चाहिए. लेकिन पॉइंट ऑफ फोकस क्या है कि उस अमाउंट की, उस पेमेंट की जो अमाउंट है उसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, वो वेरी नहीं करनी चाहिए. अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और अगर हम एक एग्जांपल वाइज देखें, सो एनुइटीज़ कैन बी कैश फ्लोज पेड सच एज मंथली रेंटल पेमेंट्स, कार पेमेंट, और दे कैन बी मनी रिसीव सच एज सेमी एनुअल कूपन पेमेंट फ्रॉम बॉन्ड, रिटायरमेंट फंड एक्सेट्रा. जिस तरह से हम मंथली रेंटल पेमेंट्स करते हैं या कार पेमेंट्स करते हैं, हमने घर का रेंट देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, दुकान का रेंट देना है, ये हमने क्या है फिक्स्ड है और हर मंथ हमने पे करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन्युटी. इसी तरह से अगर हमने कोई बॉन्ड लिया हुआ है तो उसकी जो हमें इंटरेस्ट उसके ऊपर हमें रिसीव होगा, तो वो आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर हमें रिसीव होगा और वो फिक्स्ड होता है, वो हमें रिसीव होता रहता है. इसी तरह से रिटायरमेंट फंड से जो हमें इंटरेस्ट अमाउंट आएगी वो भी फिक्स्ड होती है, वो मंथली हमें मिलती जाती है, तो उसको वो क्या कहलाती है, एन्युटी. अब एन्युटी के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं. जो फर्स्ट टाइप है विच इज़ नोन एज ऑर्डनरी एन्युटी. ऑर्डनरी एन्युटी, व्हाट इज़ एन ऑर्डनरी एन्युटी? Ordinary annuity is the cash flows occur at the end of each period. Now what happened in ordinary activity, that the amount which you have to either pay or you have to receive, but you have to receive or pay that amount at the end of each period. For example, you have to pay an yearly payment of $100 for 3 years. So when will you pay? You will pay the year start from 2021. But when will you pay the payment? As it is an ordinary annuity, the payment will be made at 31st December 2021. The second payment will be made at the end of the second year, means 31st December 2022. The third payment will be made at end of the third year, means 31st December 2023. The other type of annuity is annuity due. In annuity due, you have to pay the payment at the beginning of each period. For example, you have to pay 3 year $100, but for 3 years. So when you have to make the payment at the start of the year, means you have to pay the payment of $100 at 1st January 2021. Second payment will be made at 1st January 2022, and the third payment will be made at 1st January 2023. So what we can say, what is the difference between ordinary annuity and annuity due? That ड्यूरेशन और टाइम ऑफ द पेमेंट सेम रहेगी, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, नंबर ऑफ़ ईयर सेम रहेंगे. सिर्फ क्या होगा कि ऑर्डनरी एन्युटी में जो ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल अगर ईयरली पेमेंट है तो ईयर के एंड में हम ऑर्डनरी एन्युटी पे करते हैं या रिसीव करते हैं. बट एन्युटी ड्यू के केस में वो क्या होगा कि ईयर के स्टार्ट में, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमें वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी. अगर हमने पे करनी है तो हमने पे करनी होगी. अगर हम मंथली बात कर रहे हैं तो हमें मंथ के स्टार्ट में ही पे कर देनी है, तो वो क्या कहलाएगी, एन्युटी ड्यू. और अगर हमें मंथ के एंड में पे करनी है तो वो कहलाएगी ऑर्डनरी एन्युटी.
जिस तरह से हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने बात की थी कि अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ मेंशन नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम ये कहेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट रेट की। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्लियरली क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में मेंशन होगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। सेम इज़ द केस हियर, अगर एनविटी लिखा हुआ है और साथ मेंशन नहीं है कि ये ड्यू है या ऑर्डनरी है, तो वो ऑर्डनरी एनविटी होगी। और अगर वो एनविटी ड्यू है तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये एनविटी ड्यू की बात की जा रही है। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। सो आप लोगों ने you have to be very careful in reading the statement that what type of annuity is being talked in that question or numerical. Let's see, let's discuss the ordinary annuity and annuity due with the help of the timeline. जैसा कि हमने ये बात की थी कि ऑर्डनरी एनविटी में जो पेमेंट होती है वो ईयर के एंड में, या जो भी आप ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, मंथ या ईयर की बात करें तो मंथ के एंड में या ईयर के एंड में पे करती। अब यहाँ पे हमने 3 साल की बात की थी कि 3 साल की एनविटी है, $100 हमने पे करने हैं, तो क्या होगा कि पहला साल जो ख़त्म हो जाएगा तो उसके एंड में हमने पे किया। इसी तरह से सेकेंड ईयर की पेमेंट उसके एंड में हमने की। इसी तरह से थर्ड ईयर की जो पेमेंट है उसके एंड में हमने की। जबकि एन्युटी ड्यू में क्या है कि हम स्टार्ट में ही पे कर देते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर की पेमेंट थी, लेकिन हमने क्योंकि वो स्टार्ट में पे कर दी, तो हम यहाँ आज के टाइम में हमने पे कर दी, तो हम यहाँ पर 100 ज़ीरो पे आ जाएगा। सेकेंड ईयर की जो पेमेंट है वो स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर आ जाएगी, तो सेकेंड ईयर यहाँ पे 1 ईयर ख़त्म हो रहा है और सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने पे कर दी सेकेंड ईयर की पेमेंट। इसी तरह से जो थर्ड ईयर की पेमेंट थी वो हमने सेकेंड ईयर के, यहाँ पर सेकेंड ईयर एंड हो रहा है और थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हमने पे कर दी। तो लास्ट में हमें ईयर एंड में हमें कुछ भी पे या रिसीव करना नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब हम इंटरेस्ट रेट सिमिलर लेकर जब हम नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं की थी, ईयर एंड पर डिपॉजिट की थी, तो ये है तो ये 3 ईयर के लिए, लेकिन अगर आप इसका ड्यूरेशन निकालें तो ये जो $100 अगर हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो ये कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट हुआ, यहाँ से 1 ईयर एंड 2 ईयर, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे इसको सबमिट करवाया था, तो फर्स्ट ईयर पे इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इसी तरह से जो सेकेंड ईयर का हमारे पास $100 है, ये कितने ये टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो ये सिर्फ 1 ईयर के लिए हमारे पास इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सिर्फ 1 ईयर का कैलकुलेट होगा। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड ईयर की जो पेमेंट है, क्योंकि वो एंड ऑफ द थर्ड ईयर कर रहे हैं हम, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर हम एन्युटी ड्यू के केस में देखें तो यहाँ हम स्टार्ट ऑफ द ईयर में हम इन्वेस्टमेंट करें, तो ओबियसली इस 100 ये कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट हुआ, यहाँ से 0 से 1 ईयर, 1 to 2 2 ईयर, 2 to 3 3 ईयर्स। तो इसके ऊपर इस 100 के ऊपर अगर हम इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस पर कितने साल का इंटरेस्ट आएगा, 3 ईयर्स का। फर्स्ट ईयर वाला अगर हम देखें यहाँ पर 100, तो इसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट हुआ, 1 and 2 ईयर्स का इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। और जो लास्ट वन है ये कितने टाइम के लिए कैलकुलेट हुआ, 1 ईयर के लिए, तो उसके ऊपर 1 ईयर का होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं थी। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो इंटरेस्ट किसके ऊपर ज़्यादा कैलकुलेट होगा, ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर या एन्युटी ड्यू के ऊपर। ऑब्वियसली एन्युटी ड्यू की अमाउंट जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कैलकुलेट होगा, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है और ये कम टाइम के, सेम अमाउंट है लेकिन कम टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रही है, क्योंकि हम ईयर एंड पे कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में अगर आप बैंक कैलकुलेट करता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 31 दिसंबर को जो बैंक है वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। अगर आपने कोई पेमेंट 31 दिसंबर को ही डिपॉजिट करवाई है तो वो आपको उसके ऊपर कोई भी रिटर्न नहीं देंगी, क्योंकि सेम डे पे आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी को कोई अमाउंट इन्वेस्ट की थी सेम ईयर में, तो उसके ऊपर जब वो 31 जनवरी पे कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो पेमेंट का आ गया, पेमेंट डेट का आ गया, कि ऑर्डिनरी एन्युटी में जो है हम एंड पे करते हैं और एन्युटी ड्यू में हम स्टार्ट ऑफ द डेट में हम पे कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की कम होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कम आएगी। क्यों कम आएगी, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसके नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा हैं। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू
कम आएगी, जबकि ये आपने आज डिपॉजिट करवाया है और ये आपने नेक्स्ट ईयर और ये उससे नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में करवाया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स में हमने जैसे बात की कि रिटायरमेंट अकाउंट जो है इंटरेस्ट बॉन्ड में से आ गया तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी हो, क्योंकि क्या है कि जब आपने कई रिटायरमेंट फ़ंड में से जब आपको पेमेंट आती है तो वो पूरा टेन्योर गुजार के उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। इसी तरह से अगर आपने बॉन्ड लिया है तो 6 महीने के लिए वो बॉन्ड आपको अपने पास रखना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको पेमेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बॉन्ड ख़रीदा और साथ ही उन्होंने आपको इसकी इंटरेस्ट अमाउंट भी दे दी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखें कि अगर आपने कोई चीज़ रेंट पे ली है, फॉर एग्जांपल आपने घर रेंट पे लिया है या आपने कोई गाड़ी रेंट पे ली है, तो आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ में उसका रेंट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आपने एडमिशन लिया है तो आपको सेमेस्टर के स्टार्ट में ही एडमिशन फ़ीस जो है वो आपको जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 महीने पढ़ ली और उसके बाद आपने पे किया। तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी? एनविटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट है वो हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि एज इट इज़ इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड, क्योंकि आपने बाद में पेमेंट करनी है तो ऑब्वियसली उस ड्यूरेशन में का भी वो इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करके फिर आपके पास पेमेंट आएगी। जबकि एन्युटी ड्यू में क्योंकि हम स्टार्ट में पेमेंट कर देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ होता तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है वो छोटी आती है। अप्रोप्रिएट, अब ऑर्डिनरी एन्युटी किस केस में होगी? अगर हमने कहीं पर पेमेंट करनी है तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिले हो जाए, तो हम प्रेफर करेंगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी फ़ीसेस की ही बात करें, अगर फ़ीस हमने पे करनी है तो हम यही चाहेंगे कि जितना लेट हो सकता है उतना लेट हम फ़ीस पे कर दें। तो इन केस अगर हमने पेमेंट कहीं पे करनी है तो हम प्रेफर करेंगे कि वो ऑर्डिनरी एन्युटी हो। लेकिन अगर हमने पेमेंट लेनी है तो हम यही चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेंट पे हमने किसी को दिया हुआ है, अपना घर मैंने रेंट पे दिया हुआ है, तो मैं ये चाहूँगी कि घर का रेंट जो है वो मुझे स्टार्ट ऑफ द मंथ ही आ जाए, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू द मंथ एंड। सो अगर हमने पैसे लेने हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि एन्युटी ड्यू हो, और अगर पैसे देने हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी हो। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा टाइम लाइन की मदद से और फार्मूला से देख लेते हैं। अगर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम एक तो तरीका ये है कि हम हर एक पॉइंट के ऊपर उसका इंडिविजुअल हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था हम लास्ट न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i की पावर n। अब यहाँ पर ये हमारे पास 100 है, हम इस पे कितने ईयर का कैलकुलेट करेंगे? ये डिपॉजिट हुआ 1, 2 एंड 3 ईयर का, 3 ईयर की इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। ये वाला जो 100 है ये 2 ईयर्स तक इन्वेस्ट हुआ, इसकी 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे। इस 100 की हमारे पास 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ तो 1 ईयर की निकालेंगे। तीनों की फ्यूचर वैल्यू निकाली, तीनों का सम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इस तरह देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास 2-3 साल हो तो इजी होगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ईयर्स है, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स की, 15 ईयर्स की, 50 ईयर की एन्युटी है, तो इंडिविजुअल का निकालना इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है विच इज़ FVA, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इक्वल्स टू PMT1 + I n-1। क्योंकि हम ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें और ऑर्डिनरी एन्युटी में हम कहते हैं कि पेमेंट हमने ईयर के एंड में करनी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो ईयर है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं। इसका अगर हम सम करें तो हमारे पास ये आ जाता है PMT इक्वल टू 1 + I पावर n - 1 डिवाइडेड बाई i। -1 जो है उस अफेक्ट को कैंसिल कर रहा है कि हमारे पास जो ईयर एंड में हम पेमेंट करें, यानी कि हमारे पास अगर 3 साल है, 3 साल के लिए कोई पेमेंट हमने इन्वेस्ट किया हुआ, हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वो एक्चुअल में हमें 2 साल में हो रही होगी, इन्वेस्ट हो रही होगी, जो है उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 ईयर्स का कैलकुलेट हो रहा होगा ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में। तो ये -1 जो है वो उसको कैटर कर रहा है। इसकी जगह जिस तरह से हमने फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट की भी हमने निकाली थी, तो हम इंटरेस्ट रेट फैक्टर जो है वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हम एन्युटी में भी जो है वो इंटरेस्ट फैक्टर जो है वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल में गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स हम वो इंटरेस्ट फैक्टर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे, पेमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू फॉर 3 ईयर ऑर्डिनरी एन्युटी विद अ कैश फ्लो ऑफ $100 पर ईयर अर्निंग 6%।
3 साल की ऑर्डनरी एन्युटी है, कैश कितना मिल रहा है 100 और अर्न कितना कर रहा है 6%। फॉर्मूला हमारे पास है एफ वी इक्वल टू पी एम टी 1+i पावर n माइनस 1/i। पेमेंट हमारे पास $100 है, 100 पुट कर दिया, आई हमारे पास 6% था, पुट कर दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई इसकी 318.36। इसकी जगह हम इंटरेस्ट रेट फैक्टर भी देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट फैक्टर हम किस में देखेंगे, 6% में, और 6% इंटरेस्ट रेट एंड 3 ईयर्स में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हमने पहले डिस्कस किया फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है एन्युटी ड्यू की तो वो हम किस तरह से करेंगे। सिमिलर फार्मूला है, इसमें सिर्फ जो हम एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी में जो हम ईयर का अफेक्ट माइनस करे थे यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक उसी फार्मूले में सिर्फ हमने क्या करना है 1+i करना है तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब यहाँ पे देखें पेमेंट 1+i n माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाई बाई 1+i, और पेमेंट फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर एन्युटी 1+i। सेम इंटरेस्ट रेट फैक्टर लेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे 1+i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हम निकालनी है 3 ईयर ऑफ एन्युटी ड्यू विद अ कैश फ्लो ऑफ $100 पर ईयर अर्निंग 6%। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ वी इक्वल्स टू पेमेंट 1+i पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई 1+i। वैल्यूज़ पुट की, पेमेंट कितनी थी 100, इंटरेस्ट रेट 6%, n हमारे पास 3 था, वैल्यू पुट की तो हमारे पास एन्युटी ड्यू आ गई 337.46। अब आप ये देखें कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कम है सिमिलर अमाउंट की और उसकी ज़्यादा है, एन्युटी ड्यू की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इस वजह से एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हमेशा कम होगी, और प्रेजेंट वैल्यू के केस में ये अपोजिट हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने निकालनी है किसी भी एन्युटी की तो हम कैसे, या तो हम इंडिविजुअल कैश फ्लो की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और उनका हम सम कर लें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी है, यानी कि ईयर एंड पे हमें कैसे पता चल रहा है कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर कोई भी पेमेंट नहीं है। अगर ज़ीरो के साथ पेमेंट लिखी होती तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एन्युटी ड्यू है। अब ये जो 100 है ये 1 ईयर का, इसको आप डिस्काउंट करेंगे, इसको आप जो है वो 100 ये सेकेंड ईयर का है तो उसको 2 ईयर्स पे डिस्काउंट करेंगे और इसको आप 3 ईयर पे डिस्काउंट करेंगे, सम करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। सिमिलर फार्मूला हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू का था उसमें अगर हम एक साइड के ऊपर पी प्रेजेंट वैल्यू को एक साइड पे ले आए तो हमारे पास जो फार्मूला है उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है, पी वी इक्वल्स टू पेमेंट 1+i पावर -9 माइनस n सॉरी और डिवाइडेड बाय i। आप इसको माइनस ना लिखें, अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो भी आपके पास उस तरह से आ जाते हैं, पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 ईयर $100 ऑर्डिनरी एन्युटी गिवन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 6%, कि 3 ईयर्स को लिए हमारे पास $100 हमें मिल रहे हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, डिस्काउंट रेट 6% है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है इक्वल्स टू पेमेंट 1 माइनस 1+i पावर -n/i। पेमेंट कितनी है हमारे पास 100, पुट कर दी 1 माइनस 6% हमारे पास इंटरेस्ट रेट था, पुट कर दिया, नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 3 थे, पुट कर दिया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 267.30। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एन्युटी ड्यू के केस में सिमिलर इसी तरह सेम फार्मूला 1+i इसके साथ मल्टीप्लाई करने देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 ईयर $100 एन्युटी ड्यू गिवन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 6%। फॉर्मूला हमारे पास आ गया पी वी इक्वल्स टू पेमेंट 1 माइनस 1+i पावर -n ओवर i इन मल्टीप्लाई बाय 1+i। पेमेंट हमारे पास कितनी है 100, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 6%, एन हमारे पास 3 ईयर्स था, वैल्यू पुट की तो हमारे पास 283.34 आ गया। अब कंपैरिजन में हमने ये बात की थी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कम होगी
किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी से। तो हम यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 267 आ रही है ऑर्डिनरी एन्युटी की, और ये हमारे पास आ रही है 283.34। प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्यों ज़्यादा आ रही है हमारे पास? इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा, आज पैसे की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इस वजह से जो है ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा, तो इसलिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एन्युटी ड्यू की ज़्यादा आएगी। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है वो हमारे पास कम आएगी 267.30। अब क्वेश्चन ये आता है कि एन्युटी के जो फॉर्मूलाज हैं इनको सॉल्व करने का हमें क्या फ़ायदा है। रोज़मर्रा की रूटीन में हमारे पास इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, हमारा ताल्लुक़ वास्ता इससे पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंकिंग फ़ंड। सिंकिंग फ़ंड कहते हैं कोई भी ऐसा फ़ंड जो आप अपनी फ्यूचर की नीड्स को आप मीट करने के लिए आप अपने पास जो सेविंग करते हैं उसको हम कहते हैं सिंकिंग फ़ंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ और 3 साल के बाद, अभी पैसे नहीं हैं, 3 साल के बाद उस गाड़ी की कीमत होगी 40 लाख। तो अभी मुझे कितनी मंथली पे अपनी सैलरी में से कितनी अमाउंट जो है वो मुझे सेव करनी चाहिए कि मेरे पास 3 साल के बाद मेरे पास 40 लाख और मैं वो गाड़ी को बाई कर सकूं। तो वो पेमेंट मैं किसकी मदद से निकाल सकती हूँ? ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू की मदद से। अगर तो मैं मंथ के स्टार्ट में वो निकालती हूँ तो वो मेरे पास एन्युटी ड्यू बन जाएगा, और अगर मंथ के एंड में वो पेमेंट मैं अपने पास सेव करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाएगी। सेम इज़ द केस कि अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है या लिया हुआ है और वो हमने पे करना है, तो उसमें कितनी पेमेंट करेंगे मंथली या बाय मंथली या फिर ईयरली या बाय सेमी एनुअली, कि हम वो लोन पे कर सकें। तो वो पेमेंट भी हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? एन्युटी के फॉर्मूले से। अगर हमने मंथ के स्टार्ट में या ईयर के स्टार्ट में अगर हमने पेमेंट करनी है तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एन्युटी ड्यू। और अगर एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर हम वो पेमेंट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी ऑर्डिनरी एन्युटी। I hope all the concepts are clear. If you have any questions, you all feel free to ask me. Thank you for listening the lecture.